ओके स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम एक डिस्कस किए थे एंड आई थिंक दैट क्वेश्चन वाज if alpha and beta are the roots of x square plus 10x plus 18 is equal to 0, then find quadratic equation whose roots are alpha plus 4 and beta. तो कुछ बच्चे ट्राई किए थे कि इसमें रूट्स निकाल के यूज करने के लिए टू फाइंड आउट फर्स्ट अल्फा एंड बीटा, बट आपका ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो इट्स नॉट अन इजी टू गेट अल्फा एंड बीटा। और जो भी आ रहा है वो इरेशनल पर जा रहा है। दैट वाज द डिफिकल्ट मेथड। कुछ स्टूडेंट्स अपना दिमाग यूज किए थे, तो ऐसे किए थे कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा आपके पास -10, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 8। नाउ new sum of roots, new sum of roots is the alpha plus 4 plus beta 4, that is alpha plus beta plus 8, which is the -2, as alpha plus beta is the -10, and product of roots that is alpha plus 4 into beta plus 4. If you multiply these two, you'll get alpha beta plus 4 alpha plus 4 beta, that is 4 into alpha plus beta, alpha plus beta, then plus 16. Alpha plus beta already you have 8, minus 10 into 4, minus 40 plus 16, that is minus. So quadratic equation is x square plus minus sum of roots into x plus product of roots equal to 0. So what you got here? X square minus sum of roots. Sum of roots here -2 was there, so plus 2x plus product of roots -16 is equal to 0. So this is the required answer.
बट इसके लिए हम एक ट्रिक यूज कर सकते हैं. व्हाट इज दैट ट्रिक? If alpha beta are the roots of a quadratic equation, f of x is equal to 0, then alpha plus k and beta plus k are the roots of f of x minus k equal to 0, where k belongs to any real number. Okay. Now check that question, previous question. So that question was alpha beta are the roots of equation f of x, that was x square plus 10x plus 18 equal to 0. Okay. Now alpha plus 4 and beta plus 4 are the roots of equation f of x minus 4 is equal to, implies what? Replace x as x minus 4. Replace x as x minus 4. X minus 4 whole square plus 10 into x minus 4 plus 18 is equal to 0. आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x स्क्वायर मिलेगा, इधर होगा 2ab में minus 8x plus 10x, you'll get 2x, constant term here plus 16 minus 40 plus 18. Okay, I think लास्ट वन में हम कुछ मिस्टेक किए थे. Product of roots. Okay, here product of roots was 18, not 8. So this is 18. So 34. So this is minus 6. The answer will be the minus 6. So your answer is the x square plus 2x minus 6 is equal to 0. देखो कैसे पता चल गया. इधर हम कुछ मिस्टेक किए थे. देखो plus 16 minus 40 plus 18, that remain minus 6 equal. तो सेम इक्वेशन मिला कि नहीं मिला? ठीक है, आप वो भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो. समझ में आया? ओके. Now come to another question. If alpha beta are the roots of a quadratic equation, 2x square minus 9x plus let us take 10, 8 equal to 0, then find quadratic equation
whose roots are 3 alpha and 3 beta. Take your time and solve this question. Okay? ओके, बन गया क्या? ठीक है. Again, two different ways we can solve this one. आपके पास sum of roots 9/2 and product of roots 8/2, that is 4. So now sum of roots new के लिए 3 alpha plus 3 beta, that is 3 into alpha plus beta, which is 27/2. Product of roots 3 alpha into 3 beta, ये आपका new sum of roots. So 3 alpha into 3 beta, which is 9 alpha beta. Alpha beta is the 4, that is 36. This one is the new product of roots. So based on this, what is the quadratic equation? क्या होगा? X square minus sum of roots 27/2 into x plus product of roots equal to 0. If you multiply 2, you'll get 2x square minus 27x plus 72 is equal to 0. इसका हम डिफरेंट मेथड में कर सकते हैं. Make it note. If alpha beta are the roots of quadratic equation f of x is equal to 0, then alpha into k, beta into k are the roots of f of x by k is equal to 0. But k is not equal to 0. क्योंकि k 0 होगा तो इधर अनडिफाइंड हो जाएगा और इधर 0,0 रूट्स आ जाएगा. अब वही क्वेश्चन को हम इस मेथड में सॉल्व करेंगे. देयर क्वेश्चन वाज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 2x square minus 9x, I think minus 9x, yes, plus 8 equal to 0. तो 3 अल्फा 3 बीटा किसका रूट्स होगा? ये आपका f of x. f of x by 3 is equal to 0. Means just replace x as x by 3. So 2 into x by 3 का whole square. X square by 9 minus 9 into x by 3 plus 8 is equal to 0. Multiply by 9. So that is 2x square into, not into, 3 multiply होगा minus 27x, 9 multiply होगा plus 72 equal to 0. सेम आंसर मिला. आप वो मेथड भी यूज कर सकते हो, ये मेथड भी यूज कर सकते हो. आप खुद डिसाइड करो इसमें कितने हैं.
2 स्टेप में हो गया, इसमें 3-4 स्टेप आपको चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब इफ अल्फा बीटा चेंजेस अल्फा प्लस के प्लस बीटा प्लस के, प्लस के डज नॉट मीन्स ओनली यू हैव टू ऐड दैट थिंग, मतलब ज्यादा होना चाहिए, कम भी हो सकता है, मतलब के नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव होता है। तो इस इनफैक्ट हम कुछ प्लस होगा तो एक्स में आपका वही चीज माइनस हो रहा है, रूट्स में कुछ माइनस होगा तो वही चीज एक्स में प्लस होता है। इधर भी सेम थिंग, if alpha beta changes k alpha k beta then x changes x by k। इसका मतलब रूट्स में हम कुछ मल्टीप्लाई कर रहे तो x में उतना डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं रूट्स में कुछ डिवाइड करेंगे x में उतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, now come to next question। if alpha comma beta are the roots of quadratic equation f of x, let us take 3x square plus 4x minus 8 is equal to 0, then find quadratic equation whose roots are 1 by alpha and 1 by beta। Solve this question within 2 minutes। 2 मिनट के अंदर आप इसको सॉल्व कीजिए, देखते हैं। बन गया? ओके, बताओ। आपके पास क्या है? सम ऑफ रूट्स -4/3, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -8/3। तो आप कैसे किए? न्यू सम, मतलब 1 by alpha plus 1 by beta, which is alpha plus beta upon alpha beta। alpha plus beta -4/3 upon -8/3, that is 1/2, right? New product of roots, one by alpha into 1 by beta, मतलब 1 by alpha beta, that is -3/8। तो न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन vx square minus sum of roots 1 by 2x plus product of roots -3/8 equal to 0। LCM 8, what you got? 8x square minus 4x minus 3। हम इसको दूसरे मेथड में क्या करेंगे, कैसे करेंगे? हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग, आप फॉर्मूला बोल सकते हो, ट्रिक बोल सकते हो। क्वेश्चन वाज 3x square plus 4x minus 8। Okay, first of all make it note
if alpha comma beta are the roots of a quadratic equation f of x is equal to 0, then 1 by alpha 1 by beta are the roots of f of 1 by x is equal to 0. Simple. Replace x as 1 by x. Your question was 3x square plus 4x minus 8 equal to 0. तो replace x as 1 by x. क्या मिलेगा? 3 upon x square plus 4 upon x minus 8 equal to 0 implies 3 plus 4x minus 8x square equal to 0. थोड़ा माइनस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट 8x स्क्वायर minus 4x minus 3 equal to 0. So what you observed here, one thing you can observe this. तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, आपका ये दोनों x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट, ये दोनों क्या हो रहा है? इंटरचेंज हो रहा है, दोनों का पोजीशन वो चेंज कर देता है और यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है. तो फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा 17x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 99 इक्वल टू 0. तो वो केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा? 99x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 17 17 99 को इंटरचेंज कर दो, इसका साइन को चेंज कर दो. ठीक है ना? ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट वन. If alpha comma beta are the roots of a quadratic equation, 2x square minus 7x minus 15 is equal to 0, अच्छा ये आपका ये कर देगा ना, फैक्टराइज हो जाएगा. मैं थोड़ा 18 कर देता हूँ. माइनस 18 इक्वल टू 0. देन फाइंड quadratic equation whose roots are alpha square and beta square. दो मिनट दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व कीजिए. ठीक है, देखते हैं इसको कैसे आप टैकल करते हो. आसान है. हो गया? नहीं हुआ? ओके, पहले आपके मेथड में करते फिर देखते. मेरे पास क्या है? सम ऑफ रूट्स 7/2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -9. ये मेरे पास मुझे क्या निकालना है? न्यू सम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. क्या करेंगे? मुझे देखना है कि ये दोनों को यूज करके अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा, ये दोनों को यूज करके कैसे निकालेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर.
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यू कैन राइट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा which is 49/4 प्लस 18 तो कितना हुआ 72 121 ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दैट इज अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर 81 ये आपका तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0 चाहो तो आप 4 मल्टीप्लाई कर दो सो यू विल गेट 4x स्क्वायर माइनस 121x 81 इंटू 4 324 इज इक्वल टू समझा 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18 वाज क्वेश्चन। अभी देखते हैं इसको हम न्यू मेथड में क्या कर सकते हैं। मेक इट नोट if alpha beta are the roots of quadratic equation f of x is equal to 0 then alpha square beta square are the roots of f of root x। ये हमेशा उल्टा होता है ये स्क्वायर हो गया तो इधर रूट एक्स होगा ये क्यूब होगा तो रूट क्यूब होना चाहिए बट इसको थोड़ा मतलब कैसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करोगे वो थोड़ा चैलेंज होता है बच्चों के लिए। व्हाट इज your equation was 2x square minus 7x minus 18 2x square minus 7x minus 18 was question। मुझे क्या करना है f of root x is equal to 0 मतलब रिप्लेस x as root x तो ये हो जाएगा 2x minus 7 root x minus 18 equal to 0 बट ये तो क्वाड्रेटिक बना ही नहीं तो कैसे क्वाड्रेटिक किया जाएगा तो क्या करोगे ये 7 रूट एक्स को राइट साइड ले लो दैट मीन्स ये दोनों से आप 2 कॉमन ले सकते हो तो 2 इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 7 रूट एक्स। अब इसको स्क्वायर कर दो 2 का स्क्वायर 4 एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 एक मिनट इक्वल टू 49x तो यू गेट 4x स्क्वायर ये आपका माइनस 72x माइनस 49x इसको हम लेंगे लेफ्ट साइड तो माइनस 121x प्लस 81 इंटू 4 324 आपको सेम आंसर मिला चेक करो तो आप ये मेथड भी आप यूज कर सकते हो। If alpha beta are the roots of f of x is equal to 0 then alpha square comma beta square are the roots of f of root x equal to 0। यहाँ पे स्क्वायर होगा तो इधर स्क्वायर रूट होगा क्यूब होगा तो क्यूब रूट होगा। ये सब समझ में आया ओके चलो और कुछ करते हैं now one different type of question
It's a good question. If alpha comma beta are the roots of a quadratic equation, three x square minus 8x minus 14 equal to 0, then find quadratic equation whose roots are 3 alpha square minus 8 alpha plus 15 and 3 beta square minus 8 beta plus 10. Now solve this question. Okay. Now giving you 3 minutes. Solve this one. What happened? बन नहीं रहा है. ओके, सम ऑफ रूट्स मिल जाता है. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डिफिकल्ट हो रहा है. ठीक है, ये डिफिकल्ट को हम थोड़ा इजी बनाते हैं. देखते हैं. When I'm telling you alpha beta are the roots of equation 3x square minus 8x minus 14 equal to 0, इसका मतलब क्या है? अल्फा और बीटा यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा. मीन्स 3 alpha square minus 8 alpha minus 14 equal to 0 and 3 beta square minus 8 beta minus 14 also 0. Okay. Let us take this is p value. This one q value. So roots are p and q. What is the p plus q? It's the 3 alpha square minus 8 alpha plus 15 plus 3 beta square minus 8 beta plus 10. Enough? Actually, what is the 3 alpha square minus 8 alpha? From here you'll get that result. 3 alpha square minus 8 alpha is the 14. So this became 14 plus 15. ये भी 14 का वैल्यू प्लस 14 इंटू प्लस 10. इसका मतलब आपका 29 प्लस 24 that is 53. What is the p into q? 29 into 24. 7 20 minus 24 कितना होगा? 696. ठीक है ना? तो 29 into 20,
नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 53x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 696 इज इक्वल टू 0। बन गया क्वेश्चन, आंसर बन गया ना। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि हमेशा यू हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो दिया गया उसको ही आप देखो ना, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, पी इंटू क्यू व्हाट यू गॉट 9 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है, ये तो हो जाएगा। फिर आपको मिलेगा अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा बीटा स्क्वायर, बहुत लेंथी होता है, डिफिकल्ट भी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत दिमाग लगा के उसको ट्रिक डाल के करना पड़ता है, ठीक है। Next point is the identity. What is identity? If a quadratic equation having more than two roots instead of quadratic equation, second degree equation लिखो, क्वाड्रेटिक चलेगा, सेकंड डिग्री polynomial having more than two roots, then the equation or polynomial is called identity. If it is the function of x, then it is called identity of x, polynomial of x square, ठीक है। मैंने क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हटा दिया मैं बताता हूँ। एक्चुअली यू नो ax square plus bx plus c equal to 0, having this equation has two roots, बट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ इट इज मोर देन टू रूट्स, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। वो केस में क्या हो जाता है, इफ equation 1 has more than two roots, then आपके पास एक ही ऑप्शन बनता है, a को 0 कर दो, b को 0 कर दो, c को 0 कर दो, अभी कुछ भी x डालो तो LHS इक्वल टू RHS, तो रूट्स तो हो जाएगा। रूट्स का मतलब क्या है, x के लिए x की जगह हम जो वैल्यू डालेंगे वो राइट साइड 0 सेटिस्फाई होना चाहिए। अभी इफ यू मेक a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0, अब अभी x की जगह कुछ भी डालो तो LHS इक्वल टू RHS, तो सेटिस्फाई हो गया मतलब रूट। बट मैंने इक्वेशन क्यों मेंशन नहीं
किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हम व्हेनेवर वी आर टेलिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कंडीशन रखते थे कि a इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम रख नहीं पा रहे, a को 0 बना रहे, इसलिए बेटर टू टेक इंस्टेड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन better to call it is second degree polynomial of x. Okay, this is called identity. इसका आप एक एग्जांपल ले सकते हो. ओके, हम डिस्कस कर रहे थे आइडेंटिटी. ऑलरेडी यू नो दिस वर्ड आइडेंटिटी. कहाँ पे यूज किए थे? जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. दिस इज एन आइडेंटिटी. इसमें क्या होता है, कोई भी थीटा की जगह कोई भी वैल्यू डालो, कोई भी एंगल डाल दो, ये 1 देगा ही देगा. a माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4. दिस इज एन आइडेंटिटी फॉर एनी वैल्यू ऑफ a. आप a की जगह कुछ भी वैल्यू डाल दो, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड. सो दीज आर कॉल्ड आइडेंटिटीज. ओके, तो अभी बताओ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब आइडेंटिटी बनेगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. इट्स कॉल्ड an identity of x when, मतलब कोई भी x के लिए LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए. बट मुझे क्या पता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम 2 रूट्स होता है. नॉट मैक्सिमम, एग्जैक्टली 2 रूट्स होता है. मैक्सिमम 2 रियल रूट्स होता है. ठीक है, तो ये तो मोर देन 2 रूट्स के लिए तो सेटिस्फाई कभी भी नहीं करेगा, बट इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी. तो व्हेन आई एम कॉलिंग इट आइडेंटिटी, आई एम नॉट टेलिंग दिस वन as quadratic equation. I'm telling ax square plus bx plus c is equal to 0, called an identity of x only when a equal to 0, b is equal to 0, c equal to 0. क्योंकि मैं जब बोल दूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मेरे पास कंडीशन आ जाता है कि a is not equal to 0. That's why मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल रहा हूँ. आई एम जस्ट टेलिंग this one called an identity of x. ठीक है, for an example, a square minus 5a plus 6 if plus a square minus 9a plus 14 into x plus a cube minus 8 is equal to 0. If this is an identity, then point value of आंसर क्या होना चाहिए? क्या करोगे आप? You have to make a square minus 5a plus 6 equal to 0.
ऑल्सो a square minus 9a plus 14 equal to 0. Also a cube minus 8 equal to 0. ये तीनों सेटिस्फाई होना चाहिए. That means तीनों में जो कॉमन सोल्यूशन रहेगा, you have to pick that one. From first one, what you got? A minus 2 into a minus 3 equal to 0. That means a equal to 2 होगा और 3 होगा. From second one, you will get a minus 2 into a minus 7 equal to 0. Implies what? A is equal to 2 हो सकता है, नहीं तो 7 हो सकता है. From third one, what you got? A equal to 2. ठीक है, इसका कॉमन सोल्यूशन क्या रहा तीनों में? सो A का वैल्यू क्या होगा? Hence A is equal to 2. सपोज यहाँ पे +8 होता तो -2 आ जाता, तो नो सच वैल्यू. आपको ऐसा कुछ A का वैल्यू नहीं मिलेगा इफ इंस्टेड ऑफ a cube minus 8 constant term, if it is a cube plus 8, that time we will get a equal to -2. तो आपको कोई सोल्यूशन ऐसा नहीं मिलेगा. समझ में आया ना? ओके, अभी डिस्कस करते हैं अनदर पॉइंट. Okay. Now next point come to common roots. Root or roots. If a1x square plus b1x plus c1 equal to 0 and a2x square plus b2x plus c2 equal to 0 have a common root, then आपके पास a1 b1 c1 and a2 b2 c2 में एक रिलेशन आता है. ओके, व्हाट इज दैट रिलेशन? देखते क्या होता है. लेट अल्फा बी द कॉमन रूट फॉर बोथ द इक्वेशन. मतलब let us take this equation has roots alpha and beta, this has alpha and gamma. तो there is a common root alpha. तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा. तो you have a1 alpha square plus b1 alpha plus c1 equal to 0. Also a2 alpha square plus b2 alpha plus c2 equal to 0. तो आपका कोशिश होना चाहिए कि मैं क्या बताया, हमें रिलेशन चाहिए, ए कांस्टेंट के बीच में रिलेशन चाहिए, कोएफिशिएंट्स के बीच में a1 b1 c1 a2 b2 c2 के बीच में रिलेशन चाहिए. तो यू नीड टू रिमूव योर अल्फा, एलिमिनेट योर अल्फा. तो आप जो 9th 10th में जानते थे हाउ टू एलिमिनेट, जिससे फर्स्ट इक्वेशन को आप a2 में मल्टीप्लाई करोगे, इसको a1 में मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो आपको अल्फा मिल जाएगा. तो अल्फा का वैल्यू आप कोई भी इक्वेशन में डाल दोगे तो एक रिलेशन मिलता है. ठीक है, ओके. बट यहाँ पे हम क्रेमर्स रूल डालेंगे. क्रेमर्स रूल के हिसाब से वो थोड़ा इजी हो जाएगा. यू विल गेट अल्फा स्क्वायर
अपॉन इसका डिटर्मिनेंट B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू अल्फा अपॉन इसका डिटर्मिनेंट C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, आप ये दोनों को इक्वेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1 एंड ये दोनों को इक्वेट करोगे आपको अल्फा मिल जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। मैंने क्या बताया था, अल्फा को मुझे एलिमिनेट करना है, तो इसका स्क्वायर इक्वल टू इसके साथ इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिला, C1 A2 माइनस C1 A2 होल स्क्वायर अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1 इसका होल स्क्वायर, ये आपका अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड अल्फा, राइट साइड अल्फा का क्या, सॉरी अल्फा स्क्वायर क्या था, B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, है ना, चेक करो इसका स्क्वायर C1 A2 माइनस C2 A1 होल स्क्वायर अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1 होल स्क्वायर इक्वल टू दिस वन। ठीक है, तो एक डिनोमिनेटर पार्ट ये कैंसिल हो गया, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दैट इम्प्लाइज C1 A2 माइनस C2 A1 होल स्क्वायर बिकम A1 B2 माइनस A2 B1 into B1 C2 minus B2 C1। So try to remember this thing, but instead of फॉर्मूले के साथ आप जाओगे, बेटर आप डेरिवेशन के साथ जाओ, जैसे मैंने डेराइव किया उसके हिसाब से जाओ। ठीक है, सो दैट हमें भी इजीली हम इसको निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला याद रखना है तो रख सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो, मतलब किसी का याद नहीं रहता है, कभी बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसका याद नहीं रहता है और रखना भी नहीं चाहते, बेटर आप डेरिवेशन के साथ जाओ। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड value of lambda if quadratic equations or equations x square plus 4x minus 12 equal 0 and x square plus lambda x minus 8 equal to 0 both have a common root. If these two equations has a common root, then find the value of lambda. करो, थोड़ा कोशिश करो and find out the value of lambda.
बन गया? Okay, what is the answer? You are getting 2. Okay. ठीक है, देखते हैं। तो इफ यू गो फॉर फॉर्मूला, तो आपका A1 क्या है? 1, B1 4, C1 -2, A2 1, B2 लैम्डा, C2 -8। फॉर्मूला मेरा क्या था? A1 B2 minus A2 B1 into B1 C2 minus B2 C1 is equal to C1 A2 minus C2 A1 का स्क्वायर। यही था। A1 B2 क्या मिला? लैम्डा माइनस B1 A2 4, B1 C2 माइनस B2 C1। ठीक है, इक्वल टू C1 A2 माइनस C2 A1 whole square। That implies आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, -32 लैम्डा -48, 32 48 कितना? 80। ओके, देन 32 into 4 128 इक्वल टू ये आपका 4 का स्क्वायर 16। व्हाट यू गॉट? 12 लैम्डा स्क्वायर -80 लैम्डा 120 112। ठीक है, so from here you will get your lambda value। ओके, क्या मिला हमें? 12 अल्फा स्क्वायर माइनस 12 लैम्डा। ठीक है, 12 लैम्डा स्क्वायर माइनस 80 लैम्डा plus 1 on 2 equal to 0, divide by 4, then 3 lambda square minus 20 lambda plus 428 equal to 0, multiplication 84 20 14 and 6, so 3 lambda square minus 6 lambda plus minus 14 lambda plus 28 equal to 0,
implies 3 lambda minus 14 into lambda minus 2 इक्वल टू 0। तो आपका लैम्डा का वैल्यू 14/3 होगा और लैम्डा का वैल्यू 2 होगा। तो देयर आर टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, वन इज द 14/3 और लैम्डा का वैल्यू 2 होगा। प्रीवियस, अच्छा ये हमें क्या किया, फॉर्मूला डाले। ठीक है, हम फॉर्मूला नहीं डालेंगे। सपोज यू डोंट नो फॉर्मूला, देन हाउ टू सॉल्व। क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 14x minus 12 equal to 0 and x square plus lambda x minus 8 equal to 0। okay? तो अब ट्राई करोगे कि पहले x इसको माइनस कर दो, एक्स स्क्वायर हट जाएगा तो x का वैल्यू मिलेगा, फिर कोई भी इक्वेशन में डालो। अदरवाइज गो फॉर क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को कट करो, ये दोनों का डिटरमिनेंट। ठीक है, 14 into 8 कितना होता है, 112 minus 112 plus 12 lambda is equal to x upon minus 12 plus 8, मतलब minus 4 is equal to 1 upon lambda minus 14। ठीक है, तो आप ये दोनों को इक्वेट करो तो आपको मिला 12 lambda minus 112 upon lambda minus 4। This is the value of x square and ये दोनों को इक्वेट कर दो, you'll get x value 4 upon minus 4 upon lambda minus 14। तो अभी इसका स्क्वायर तो क्या होगा, 16 अपॉन लैम्डा माइनस 14 का स्क्वायर, ये 14। ठीक है, चलो तो मैं इरेजर यूज कर देता हूँ। तो इसका स्क्वायर इक्वल टू आपको मिला, फ्रॉम हियर यू कैन टेक 4 कॉमन, देन 3 लैम्डा माइनस 112 28 ना, यस, अपॉन लैम्डा माइनस 14। तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्लियरली लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 14 होगा, ये कंडीशन भी आना चाहिए। अब इसके साथ कैंसिल करोगे तो ये 4 रहेगा, इसको प्लस मल्टीप्लाई करो, आपको कोई आंसर मिलेगा। बट इससे और एक बेस्ट मेथड होता है, तो एक बार देख लो अल्टरनेटिव। क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा x माइनस 8 इक्वल टू 0, बोथ हैव वन कॉमन रूट। तो इसका रूट मुझे पता, ये तो मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ। तो मल्टीप्लीकेशन माइनस 12 एंड सम इज द 4, तो you'll get x plus 6 into x minus 2 equal to 0। तो जो कॉमन रूट होगा x इक्वल टू माइनस 6 होगा और x इक्वल टू 2 होगा। इफ यू यूज x इक्वल टू माइनस 6 तो क्या मिलेगा, 36 माइनस 6 लैम्डा माइनस 8 इक्वल टू 0।
that implies lambda equal to 28/6 which is the 14/3 जो आंसर हमें मिला था। नहीं, x के जगह मैं 2 डाल दूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है 4 + 2 लैम्डा -8 = 0 तो लैम्डा इक्वल टू 2 तो इजीली मिल गया। ठीक है ना। तो दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। Now, next point is the if a1 x square plus b1 x plus c1 is equal to 0 and a2 x square plus b2 x plus c2 equal to 0, both have same roots, then सेम रूट्स होगा तो क्या होगा, दोनों इक्वेशन सेम होना चाहिए, नहीं तो एक दूसरे का कोई मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो हमें क्या मिल जाएगा, a1/a2 is equal to b1/b2 equal to c1/c2। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल लेट अस टेक 3x square plus 7x plus 8 equal to 0 and ax square, एक काम करते हैं +8 की जगह मैं कुछ डाल देता हूँ लैम्डा, and ax square plus 21x plus 35 is equal to 0, both have same roots, then find value of फोर लैम्डा माइनस तो आपको क्या मिलना चाहिए, 3/a equal to 7/21 equal to λ/35, ये होना चाहिए। तो ये आपको दे दिया क्या, a1/a2 3/a equal to b1/b2 7/21 equal to λ/35, तो ये आपको दे दिया 1/3। ठीक है। ये दोनों को इक्वेट करोगे, आपका a का वैल्यू क्या हो गया 9, और ये दोनों को इक्वेट करोगे लैम्डा का वैल्यू क्या हो गया 35/3। आपको 4 लैम्डा चाहिए तो कितना होगा 4 लैम्डा 140, 40/3 माइनस 3a 27, तो ये हो गया आपका 81, 140 माइनस 81 कितना 59 upon 3, so this is the answer। तो आई होप आप सबको समझ में आया कैसे, और कॉमन रूट होगा तो कैसे निकालते हैं, दोनों रूट्स कॉमन होगा तो कैसे निकालते हैं। ठीक।
नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास और कुछ डिस्कस करेंगे। थैंक यू। थैंक्स ऑल।